अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास. Last day we had completed 8 paragraphs of our last unit, unit number 12, 3 days to see. Today we will start from paragraph 9. Now start reading. Fatma Aslam. Fatma Aslam, start reading paragraph 9. Okay, I read. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. Now and then means kabhi kabar. Tested means आजमाना. Seeing friends means बिनाई रखने वाले दोस्त. Seeing friends बिनाई रखने वाले दोस्त. Discover, to discover means जानना. ठीक है. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. कभी कभार मैं अपने बिनाई रखने वाले दोस्तों को ये जानने के लिए आजमाती हूँ या आजमा चुकी हूँ कि वो क्या देखते हैं. I again repeat this. कभी कभार मैं अपनी बिनाई रखने वाले दोस्तों को ये जानने के लिए आजमा चुकी हूँ कि वो क्या देखते हैं. Recently, हाल ही में. I was visited by a very good friend. हाल ही में, recently means हाल ही में, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मुझसे मिलने आई, who had just returned from a long walk in the woods, जो जंगल से एक लंबी सैर के बाद वापस आई थी. ठीक है. आई रिपीट दिस. हाल ही में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मुझसे मिलने आई जो अभी अभी जंगल की एक लंबी सैर के बाद वापस आई थी. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड. ऑब्जर्व्ड मीन्स यहाँ पर होगा देखना, या आप मुशाहिदा करना भी लिख सकते हैं. आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड. मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा या उसने क्या मुशाहिदा किया. नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ खास नहीं. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. उसने जवाब दिया. आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस मीन्स यकीन ना करना. ठीक है. आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस had I not been accustomed to such responses. Accustomed to mean आदी होना. Responses जवाबात. ठीक है. मैं शायद यकीन ना कर सकती अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती. I again repeat this. I might have been incredulous had I not been accustomed such responses. मैं इसका यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती. फॉर लॉन्ग अगो, लंबा अरसा पहले. आई बिकेम कन्विंस्ड. कन्विंस्ड मीन कायल होना. लंबे अरसे पहले मैं कायल हो चुकी थी दैट द सीइंग सी लिटल, के बिनाई रखने वाले बहुत कम देखते हैं. सीइंग मीन्स बिनाई रखने वाले. ठीक है. I again repeat this paragraph. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. कभी कभार मैंने अपने बिनाई रखने वाले दोस्तों को ये जानने के लिए आजमाया कि वो क्या देखते हैं. Recently, हाल ही में, I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the jungle. हाल ही में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मुझसे मिलने आई जो जंगल से अभी अभी
एक लंबी सैर के बाद वापस आई थी। I asked her what she had observed. मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। Nothing in particular, कुछ खास नहीं, she replied, उसने जवाब दिया। I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses. मैं इसका शायद यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती। For long ago, क्योंकि लंबा अरसा पहले, I became convinced that the seeing see little, क्योंकि लंबा अरसा पहले मैं कायल हो चुकी थी कि बिनाई रखने वाले बहुत कम देखते हैं। Understand? नूर फातिमा, जुहेब, उस्मान, रबिया, आमना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No. आमना आपको? No. No. यस उस्मान? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आमना, रीड पैराग्राफ नंबर 10। जो only reader translate भी करना है। नहीं, आपने जस्ट रीड करना है। How was it possible, I asked myself, to walk for 1 hour in the woods and see nothing worthy of note? I who cannot see, find hundreds of things to interest me through merry touch. I feel the delight. Mere touch, mere. I feel Yes. the delicate symmetry of a leaf. I pass my hand lovingly on the smooth skin of the silver birch, or the rough, shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of tree, hopefully in search of bird. The first sign of a waking nature after her winter sleep. I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolution, and some things of the miracle of nature is. Okay, stop. Convolutions, okay. How was it impossible? Sorry, how was it possible? ये कैसे मुमकिन था? How was it possible? ये कैसे मुमकिन था? I asked myself, मैंने खुद से पूछा। To walk for an hour in the woods, के जंगल में 1 घंटा चहलकदमी की जाए या सैर की जाए, and see nothing worthy of note, और कोई काबिले जिक्र चीज ना देखी जाए। I again repeat this line. How was it possible, I asked myself, to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note? ये कैसे मुमकिन था? मैंने खुद से पूछा कि जंगल में 1 घंटा तक सैर की जाए और कोई काबिले जिक्र चीज ना देखी जाए। I who cannot see, मैं जो कि देख नहीं सकती, can find hundreds of things to interest me through mere touch, मैं जो कि देख नहीं सकती, महज छू कर अपनी दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें तलाश कर सकती हूँ। ठीक है, I again repeat this. मैं जो के देख नहीं सकती, mere means महज छू कर अपनी दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें तलाश कर सकती हूँ। I feel the delicate symmetry of a leaf, मैं एक पत्ते की नाजुक बनावट को महसूस करती हूँ। Delicate means नाजुक, symmetry means बनावट। I feel the delicate symmetry of a leaf, मैं एक पत्ते की नाजुक बनावट को महसूस करती हूँ। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch. Silver means सुरमई,
birch एक दरख्त का नाम है, ठीक है। I pass my hands, मैं प्यार से हाथ फेरती हूँ about the smooth skin of a silver birch, सुरमई बिर्च की मुलायम छाल पर, ठीक है। मैं प्यार से हाथ फेरती हूँ। और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, शैगी बार्क रफ हो गया नाहमवार, शैगी बार्क हो गया क्या कहना चाहिए, शैगी मीन्स बालों वाले तना, बालों वाले तने पर, नाहमवार बालों वाले तने पर सुनोबर के हाथ फेरती हूँ। आई अगेन रिपीट दिस, I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. मैं सुरमई बिर्च की मुलायम छाल या सुनोबर के, पाइन मीन सुनोबर, या सुनोबर के नाहमवार बालों वाले तने पर प्यार से हाथ फेरती हूँ। In spring, बहार में I touch the branches of trees hopefully. मैं दरख्तों की शाखों पर पुरुमीद होकर दरख्तों की शाखों को पुरुमीद होकर छूती हूँ। In search of a bud, एक कोम्पल की तलाश में, ठीक है। I repeat this, बहार में मैं या बहार के मौसम में मैं एक कोम्पल की तलाश में पुरुमीद होकर दरख्त की शाखों को छूती हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, जो कि सर्दी की नींद के बाद फितरत के जागने की पहली अलामत है, ठीक है। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग मीन्स जागने की, और नेचर फितरत या कुदरत, और विंटर स्लीप सर्दी की नींद, जो कि या मौसम सरमा की नींद भी कह सकते हैं, जो कि मौसम सरमा की नींद के बाद फितरत के जागने की पहली अलामत है। I feel the delightful velvety texture of a flower. मैं एक फूल की खुश कर देने वाली, डिलाइटफुल खुश करने वाली, वेलवेटी मीन्स मखमली, टेक्सचर भी बनावट। I feel the delightful velvety texture of a flower. मैं एक फूल की खुश कर देने वाली मखमली बनावट को महसूस करती हूँ। And discover its remarkable convolutions, और इसकी एक दूसरे पर लिपटी हुई गैर मामूली तहों को दरियाफ्त करती हूँ। डिस्कवर दरियाफ्त करना, रिमार्केबल गैर मामूली, और कॉन्वोल्यूशंस हैं एक दूसरे पर लिपटी हुई तहें। आपने देखी होंगी रोज फ्लावर किस तरह उसके पेटल्स जो से हैं एक दूसरे के साथ जो से हैं वो चिपके होते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। आई अगेन रिपीट दिस, मैं एक फूल की खुश कर देने वाली मखमली बनावट को महसूस करती हूँ और उसकी एक दूसरे पर लिपटी गैर मामूली तहों को दरियाफ्त करती हूँ। And something of miracle of nature, of the miracle of nature is revealed to me. Revealed होना, आश्कार होना, ठीक है। Miracle मोजज़ा, और फितरत के मोजज़े की कोई चीज मुझ पर आश्कार होती है, या कुदरत के मोजज़े की कोई चीज मुझ पर आश्कार होती है। 9th class, if you have any issue you can ask me. It is a little bit difficult, so if you have any issue you can ask me. Aline, टीचर आ गई है। आ गई। आमना, आमना समझ आ गई आपको? यस। ओके। फातिमा असलम, मैंने आपको रीडिंग के लिए कहा तो आप फौरन से गायब हो गई, ठीक है। जिस वक्त क्लास स्टार्ट होने वाली थी तब आपका माइक ऑन था, अब आपका माइक ऑन नहीं है, ना आप रिप्लाई कर रही हो। नहीं टीचर, वो कॉल आ गई थी तो मैंने इसलिए क्लास लीव कर दी थी। ओके,
अब आप बताएं, आपको समझ आ गई है? Yes, teacher. ओके, हिबा? Yes, teacher. ओके, गुड। मेहरुनिसा? मेहरुनिसा? जी। रबिया? यस मिस आ गई है। उस्मान? आ गई है समझ। जुहेब? से समझ आ गई है। गुड। मुजना? चलें जी, ये सुनना भी है, सिर्फ ये नहीं कहते ना समझ आ गई। जब मेरी टर्न आएगी ना सुनने की, फिर आपको सुनाना पड़ेगा। यस जुहेब, स्टार्ट रीडिंग। If I were the president of a university, I would establish नहीं a नहीं, किधर compulsory. किधर किधर, वेट। Yes. Start from the last line of 125, page number 125, last line. Okay. Uh, occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy queer of a bird in full song. I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. Okay. Occasionally means वक्तन फवक्तन. Fortunate means खुश नसीब होना. Gently means हल्के से या आहिस्ता या नरमी से. हैप्पी क्वेर है थरथराहट. और हैप्पी खुशकुन थरथराहट यानी खुशी में. आपने परिंदे को अक्सर बैठे हुए देखा होगा, उसके पर हिल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं. डिलाइटेड, ओके, खुशी को कहते हैं, ठीक. ब्रूक होगा नदी. रश थ्रू मीन्स से गुजरना. लश मीन्स सरसब्ज. पाइन निडल मीन्स सनोबर के कांटेदार पत्ते. स्पॉन्जी मीन्स मुलायम, नरमो मुलायम. वेलकम मीन्स खुश आइंद. लग्जूरियस मीन्स पुर आसाइश. पर्शियन ईरानी रग चटाई. पेजेंट मीन्स रंगीन. थ्रिलिंग मीन्स वलवला अंगेज. स्ट्रीम थ्रू मीन्स से गुजरना. Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree. वक्तन फवक्तन, अगर मैं खुश नसीब हूँ, मैं एक छोटे से दरख्त पर हल्के से हाथ रखती हूँ. And feel the happy queer of a bird in full song. तो एक खुशी से गीत गाते परिंदे की खुशकुन थरथराहट को महसूस करती हूँ. बर्ड इन फुल सॉन्ग मीन्स खुशी से गाता हुआ परिंदा, ठीक है. आई अगेन रिपीट दिस.
Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. वक्तन फवक्तन अगर मैं खुश नसीब हूँ तो मैं एक छोटे दरख्त पर हल्के से हाथ रखती हूँ और एक खुशी से गीत गाते परिंदे की खुशकुन थरथराहट को महसूस करती हूँ. I am delighted to have the cool water of a brook rushing through my open fingers. मैं अपनी खुली उंगलियों में से नदी के पानी को ठंडे पानी को गुजरते हुए महसूस करके खुश होती हूँ. I again repeat this. I am delighted to have the cool water of a brook rush through my open fingers. मैं अपनी खुली उंगलियों में से नदी के ठंडे पानी को गुजरते हुए महसूस करके खुश होती हूँ. To me, मेरे लिए a lush carpet of pine needle और spongy grass. मेरे लिए सनोबर के कांटेदार पत्तों का सरसब्ज कालीन या नरमो मुलायम घास is more welcome than the most luxurious Persian rug. और या नरमो मुलायम घास ईरानी पुरआसाइश चटाई से ज्यादा खुश आइंद है. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. To me, a lush carpet of pine needle or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. मेरे लिए सनोबर के कांटेदार पत्तों का सरसब्ज कालीन या नरमो मुलायम घास पुरआसाइश ईरानी चटाई से ज्यादा खुश आइंद है. To me, मेरे लिए The pageant of seasons is a thrilling and unending drama. मेरे लिए मौसमों का रंगीन मंजर एक वल्वला अंगेज और ना खत्म होने वाला ड्रामा है. पेजेंट बिन रंगीन मंजर हो जाएगा. ठीक है. I again repeat this line. To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama. मेरे लिए मौसमों का रंगीन मंजर एक वल्वला अंगेज और ना खत्म होने वाला ड्रामा है. The action of which streams through my fingertips. जिसका अमल मेरी उंगलियों के पोरों में से गुजरता है. ठीक है. Excuse me, sir. Fingertips Excuse me, means sir. yes. जब पोरो का स्पेलिंग है पोरो. पे वाव रे फिर वाव और नून साकिन. ठीक है. फिंगर टिप्स उंगली की पोरों. जिसका अमल मेरी उंगलियों के पोरों में से गुजरता है. कहने का मकसद ये है कि वो कह रही है मौसमों का रंगीन मंजर उसे खुश कर देता है. उसे लगता है ना खत्म होने वाला ड्रामा. अब बात यह है कि वो मौसमों को फील कैसे करती है. आपने हर जगह देखा होगा कि वो अपने हाथ को यूज करती है और नदी का पानी भी वो फील करती है और खुश होती है. उसे पता चलता है कि ठंडा है, गर्म है, उंगलियों में से गुजरता है तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है. इसी तरह हर चीज को ऑलमोस्ट वो टच करके मौसमों को, इवन के मौसम भी वो अपने हाथों के जरिए फील करती है. पौधों को हाथ लगाती है, फूलों को महसूस करती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया हुआ है. ठीक है. इसी तरह से ठंडा गर्म यानी कि वेदर को फील करती है वो अपने हाथों से और उसे अंदाजा हो जाता है और वो इस तरह से वो खुशी हासिल करती है. ठीक है. उस्मान, यू रीड लास्ट पैराग्राफ. Excuse me, sir. Okay. जी. जब ब्रूक जी, का जी. क्या मतलब है ब्रूक? ब्रूक कहते हैं नदी को. ठीक है. स्ट्रीम मींस स्ट्रीम, नदी. If I were the president of a university, I would set up a course called How to Use Your Eyes. The professor would try to show his pupils how they could
add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. He would try to awaken their dormant and sluggish faso- faculties. Please. Yes. President means सदर, ये तो आपको पता है. Established, establish कायम करना. Compulsory लाजमी. Course निसाब. अच्छा. Pupils शागिर्द. Really हकीकी तौर पर. Unnoticed बगैर देखे. Unnoticed बगैर देखे. Awaken होता है, to awaken means जगाना, बेदार करना. Dormant होता है ख्वाबीदा, ख्वाबीदा. Sluggish means सुस्त. Sluggish, सुस्त. Faculties means सलाहियतों या सलाहियतें. If I were the president of a university, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की सदर होती, I should establish a compulsory course in how to use your eyes. तो मैं एक लाजमी निसाब अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाए कायम करती. अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की सदर होती तो मैं एक लाजमी निसाब कायम करती जिसका उन्वान अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाए होता. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप जैसे मैंने पहले किया वैसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की सदर होती तो मैं एक लाजमी निसाब अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाए कायम करती. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives. प्रोफेसर अपने शागिर्दों को ये दिखाने की कोशिश करता कि अपनी जिंदगियों में कैसे खुशी का इजाफा कर सकते हैं. By really seeing what passes unnoticed before them, हकीकी तौर पर वो देखकर जो उनके सामने से बगैर देखे गुजर जाती हैं. अब सीइंग यहाँ पर देखने वाली चीजें भी कह सकते हैं, ठीक है. हकीकी तौर पर उन चीजों को देखकर जो उनके सामने से बगैर देखे गुजर जाती हैं. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. वो उनकी ख्वाबीदा और सुस्त सलाहियतों को जगाने की कोशिश करेगा. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. वो उनकी ख्वाबीदा और सुस्त सलाहियतों को जगाने की कोशिश करेगा. Okay, 9th class, if you have any issue you can ask me. We have completed translation of unit number 12 from paragraph 1 to paragraph 11. If you have any issue you can ask me. कोई मसला नहीं है तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं. Yes, no issue. Okay. Look at next page, glossary. First you have to learn its meanings properly. Okay, glossary is very compulsory. Now come to page number 129, vocabulary. It is your work. You have to consult your dictionary and find out its meanings and write them on the book. I will check it when school will open. Encircle the option that relates to the text. Now you have to check, choose the correct option. Okay. Apparently means obviously, as it appears, or clearly. Yes, Aline. Clearly.
that relates to the text. If I don't read. जो ज्यादा As it मतलब कि जी as it appears. obviously A Yes, option sir. तुझे समझ नहीं आई. A option ठीक है इसके मीनिंग्स तो तीनों ही इसके मतलब मीनिंग्स हैं बट आपने टेक्स्ट अपने ये जो अभी रीडिंग की है इसके अकॉर्डिंग जो क्लोजेस्ट इसका मीनिंग है वो ऑब्वियसली है ठीक है मैनीफोल्ड मींस जुहेब An object, नो different types, जी डिफरेंट टाइप्स मैनीफोल्ड मींस डिफरेंट टाइप्स ए ऑप्शन quiver means to demonstrate to shake slightly or to act amusingly to shake slightly, Shake yes slightly. to shake slightly good next one is also about meanings search about their meanings and write on your books okay I will ask you inshallah tomorrow next one is grammar conditional sentences what are conditional sentences there is its type 2 imaginary conditionals of this type are used when we talk about something which we do not expect to happen or which is purely imaginative. For example, if I were the president of a university, I should establish a compulsory course in how to use your eyes. Conditional sentences are such sentences which require a condition that if we do this work, you will get this thing. Okay? शर्तिया जुमले यानी कि अगर आप कोई कंडीशन उसकी पूरी करेंगे तो ये काम होगा लेकिन इसकी भी आगे टाइप्स हैं ये टाइप 2 है इमेजिनरी कंडीशन है जिसे आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं वो इन रियल वो नहीं हो सकता ठीक है उन्होंने एग्जांपल भी दी है द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज blind and deaf she has a desire to be a president but she cannot be क्योंकि वो blind भी है deaf भी है तो वो चाह रही है वो ख्वाहिश कर रही है कि अगर 3 दिन मिले तो उसमें ऐसा हो जाए कि मैं एक यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हो जाऊं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये इमेजिनरी कंडीशन है इसमें वर और शुड का यूज होगा इफ के साथ वर और उसके बाद शुड वुड इसका यूज करेंगे अच्छा ओपन नेक्स्ट पेज 130 काइंड्स ऑफ sentences all you know you have I think learned it before sentences are of 3 types simple sentence compound sentence and complex sentence what is simple sentence all main clauses can stand as simple sentence with the rest of a sentence is removed they mean to say simple sentence is a complete sentence with a subject an object and a verb okay it is a simple sentence now come B on B compound sentence. A compound sentence contains 2 or more main clauses. They have given you example night came on. The room grew dark. These 2 sentences are complete sentences means these are main clauses but both of these are connected with and okay next one is he is rich comma yet he is not happy he is rich he is not happy these are 2 main clauses such sentences are called compound sentences
What are complex sentences? Complex sentences contain one or more main clauses or one or more subordinate clauses. Subordinate clauses means such clauses which starts with a conjunction. Okay. Now complete exercise according to the conditional sentence. If I were the education minister dash. Yes, 9th class. Who will complete this second conditional sentence? If I were the education minister. Excuse me, teacher. जी, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होता है? जो एजुकेशन को जो सा है क्या कहना मिनिस्टर वजीर होता है ना, तालीम का वजीर होता है, एजुकेशन से मुतालिक जो भी डेवलपमेंट होती हैं उसको वो पास ऑन करता है। मैं कर सकता हूँ। जी जी। So if I were the education minister, I would promote politics. पॉलिटिक्स एजुकेशन कहें तो फिर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। So if I were the education minister, I would promote literacy कह दूँ अगर मैं। Yes, I would increase or promote. जो promote ज़्यादा वो लग रहा है। ठीक है। I would promote literacy rate in my country. ठीक है। Good. Next, if you had a degree dash. Yes, Aline. Mehrun Nisa. You can get good job. क्या हुआ? Yes, Aline. टीचर हम लिख सकते हैं if you had a degree you can get good job. You would. हाँ बोले। टीचर आपकी आवाज कट रही है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बताएं कि आप क्या कह रही हैं। अच्छा, मैं कह रही हूँ टीचर if you had a degree you can या you would get a good job. कैन नहीं लगाना, वुड शुड आप ये यूज कर सकती हैं। हाँ बोलें, यू वुड Get a good job. you would get a good job. Okay. Next. Dash, you would get first position. Zuhaib. If You you have to worked make a hard, sentence. you would get first position. Yes. If you worked hard, you would get first position. Good. Next one. If he stopped smoking. Dash. If he stopped smoking. Yes. Mehrun Nisa.